السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مختلف طرح کی تمام چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس وقت ایک اہم موضوع پر، جسے پردہ کہا جاتا ہے، حجاب کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے ہندوستان میں پردے کا چلن ہے۔ اس وقت جو موضوع پورے ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا ہے، تمام اخباروں کی سرخیاں، تمام چینل پر صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے، ایک ہی آواز گونج رہی ہے، وہ ہے پردہ اور حجاب یا نقاب۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی وہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو عورتیں بھی پردہ کرتی تھیں، گھونگھٹ کاٹتی تھیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری مائیں بہنیں وہ کتنی بھی بوڑھی کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ گھر کے افراد بھی اگر گھروں کے اندر جاتے تھے تو ہلکی سے کھانسنے کی آواز کرتے تھے تاکہ لوگ پردے میں ہو جائیں۔ یہ ہندوستان کی تہذیب تھی۔ اسی سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے دو اہم شخصیات سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا نظریہ ہے، اسلام کی روشنی میں پردے کی کیا اہمیت و افادیت ہے، ہندوستان کے موجودہ صورتحال پر ان کی کیا نظر ہے۔ ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر مولانا محمد ہلال اعظمی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد حمران صاحب۔ یہ دو اہم شخصیات ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں پردے کا جو چلن ہے یہ کیا ہے، اس کی بارے میں کہا کیا گیا ہے، اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہو سکتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ پردہ پرتھا بھارت ہی نہیں اپیتو وشو کے کئی مسلم دیشوں میں کافی پرانے سمے سے چلتا آ رہا ہے۔ پردہ ایک اسلامی شبد ہے جو عربی بھاشا میں فارسی بھاشا سے آیا۔ اس کا ارتھ ہے ڈھکنا یا اپنے آپ کو الگ کرنا۔ یہ اس کی پریبھاشا ہوئی، یہ اس کی تعریف ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی شروعات بھارت میں 12ویں صدی سے مانی جاتی ہے۔ سبھی مسلم دیشوں میں پردے کا چلن ہے۔ بھارت کی کچھ ہندو جاتیاں بھی اس پرتھا پر عمل کرتی ہیں، یعنی کہ وہ بھی پردہ کرتی ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ جو ہندوستان، جو ہمارا ملک ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر سبھی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، پوجا کرنا چاہے تو پوجا کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے، ہم اپنے مذہب پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ اس پر اگر اشعار دیکھے جائیں تو بہت سارے ہیں۔ میں قبل اس کے کہ آگے بڑھوں، مجھے اکبر الہ آبادی کا یہ شعر یاد آتا ہے: بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی پردے کا چلن تھا، وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان۔ مسلمان عورتیں اگر کالے کپڑے سے، جسے ہم نقاب کہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتی تھیں
वहीं हिंदू औरतें चादर से अपने चेहरे को घूंघट की शक्ल बना करके अपने आप को छुपाती थीं। औरत जिसे कहा जाता है उर्दू में, औरत के माने ही पर्दे के हैं, पोशीदा रखने के हैं। और जब हर एक को ये आज़ादी हासिल है कि वो जिस तरह से चाहे ज़िंदगी गुजारे, यहाँ पर ड्रेस कोड का जो मसला है, ड्रेस कोड ठीक है, लेकिन स्कूल का जो मामला है कि स्कूल किस लिए होते हैं, स्कूल इल्म देने के लिए होते हैं, पढ़ाने के लिए होते हैं, शिक्षा देने के लिए होते हैं, तो हमें ज़्यादातर तवज्जो इल्म पर देना चाहिए, शिक्षा पर देना चाहिए, एजुकेशन पे देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें माने नहीं रखती। तो मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से मैं दरख्वास्त करूँ अपने तमाम साथियों से, आप सुनेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं। बहरहाल ये तमाम अहम शख्सियतें जो अपने अपने इदारे के सदर हैं, मौलाना मोहम्मद हिलाल आज़मी शिबली इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर हैं और एक माहनामा सदाए शिबली के नाम से निकालते हैं। इनकी फ़िक्र बड़ी वसी है, इस्लामी मालूमात पर वसी नज़र है। उसी तरीक़े से मौलाना मोहम्मद हुमरान साहब मारूफ़ी MS क्रिएटिव स्कूल के सदर हैं शोबे उर्दू के, ये भी आलिम हैं, इन्हें भी दीन पर और दीन की मालूमात का अच्छा मुताला है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों हजरात अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी, एडिटर माहनामा सदाए शिबली हैदराबाद, चेयरमैन शिबली इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट हैदराबाद। नाजरीन, इस्लाम में पर्दे की बहुत ही अहमियत है, बल्कि यूँ कहा जाए कि वाजिब और फ़र्ज़ के दर्जे में है। मर्द के लिए भी एक लिबास है, औरत के लिए भी एक लिबास है। दोनों के सतर मुतय्यन हैं और जो भी इनके खिलाफ वर्जी करता है वो अल्लाह को नाराज़ करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि उस सहाबिया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। पर्दे की वजह से बेहयाई, बेगैरती से बचा जा सकता है, खुद भी बचा जाएगा और दूसरों को भी बचाया जाएगा। पर्दे की वजह से शैतान खुश होता है बेपर्दगी की वजह से, और जब पर्दा एक कोई खातून या कोई लड़की करती है तो उसमें हिम्मत पैदा होती है, कुव्वत पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। शर्त यह है कि वह अल्लाह से अपना लगाव रखे और अल्लाह से अपने आप को जोड़े रखे। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफ़त में हर मज़हब के मानने वालों में किसी न किसी तरीके से पर्दे का सबूत मिलता है। गर्चे कि इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर कुछ मगरिब के असरात नज़र आते हैं, जिसका तवस्सुत सोशल मीडिया के ज़रिए या जो है टेलीविज़न के ज़रिए या मॉडलिंग के ज़रिए कुछ न कुछ मौजूदा दौर में बेपर्दगी इससे जो है फैलती जा रही है। लेकिन चाहे हिंदू हो, मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई, हर एक के यहाँ एक तहजीब है और हर एक के यहाँ एक अदब है, एक लिबास है। इस बुनियाद पर पर्दे को समझने की ज़रूरत है। मौजूदा जो हिंदुस्तान का मंजरनामा है, चारों तरफ
पर्दे के बारे में, और वो मुस्कान खान जिसने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला किया, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने आप को मजबूत ढांचे के साथ लोगों के सामने पेश किया, लायक तहसीन भी है और काबिल मिसाल भी है। तो इसको ये असल चीज़ ये है कि ये तालीम से ज़्यादा इसके अंदर तरबियत का रुझान पाया जाता है। अगर तरबियत है और एहसास है तो ऐसी सूरत के अंदर पर्दा मुआशरे के लिए, समाज के लिए और ख़ुद उस लड़की के लिए तरक्की का ज़ामिन होगा। इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना दामन भी उसी तार से बनता है कफन भी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हुमरान अहमद मारूफ़ी, उस्ताद MS क्रिएटिव स्कूल हैदराबाद आपसे मुखातब हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, इस वक्त रियासत कर्नाटक हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ हो गई है। उसी के पस मंज़र में दो तीन बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दीन व मज़हब की तारीख़ का मुताला करने से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए इस दुनिया में दो चीज़ें भेजी हैं। एक तो अल्लाह ताला ने हज़रात अंबिया कराम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिलसिला जारी फरमाया, और दूसरे अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नादिल फरमाई। अंबिया का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख़त्म हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने एक आखिरी किताब भेजी, कुरान करीम। अब इसके बाद कोई किताब नहीं आने वाली है और इसी कुरान के ऊपर तमाम लोगों को अमल करना है। ये कुरान हमें ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, यूँ समझिए कि हमारा एक आईन है, दस्तूर है, और इसी कुरान के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। और हमारे पास कुरान जो एक दस्तूर की शक्ल में है, इसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। हम लोग जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, और यहाँ पर एक आईन है और हम उसको भी मानते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कुरान की शक्ल में जब हमारे पास दस्तूर था तो फिर हमने हिंदुस्तान के आईन को क्यों माना? एक सवाल है, और उसका बिल्कुल आसान जवाब ये है कि हिंदुस्तान का जो आईन बना है, हिंदुस्तान का जो कानून बना है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, उस दस्तूर के अंदर हमें इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपने कुरान के ऊपर अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी हिंदुस्तान का आईन और दस्तूर हमारे कुरान के आईन से नहीं टकरा रहा है, इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने उस आईन को कबूल कर लिया है। चुनांता आर्टिकल 25 पढ़िए, उसके अंदर क्या है, तमाम मज़ाहिब वालों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी इजाज़त है। हम अपने इस्लामी तशख़्ख़ुसात के ऊपर अमल कर सकते हैं। तो रियासत कर्नाटक में मुस्कान नाम की जो लड़की है, जिनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही साथ वहाँ के कॉलेज की जो इंतज़ामिया है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बर वक्त क्या है बीच में आए और उस लड़की की हर तरीके से हिफाजत फरमाई। तो मुस्कान लड़की ने जो काम किया है बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक किया है, और उन्होंने शरपसंदों के बीच रहकर अपनी हिफाजत की परवाह किए बगैर नारे तकबीर उनकी ज़बान से निकला, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने अल्लाह के नाम को बुलंद किया। तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में मुस्कान के नाम को बुलंद कर दिया। तो यहाँ पर मैं अपने हाज़रीन और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी औलाद की ऐसी ही तरबियत कीजिए कि कहीं पर ऐसा आ जाए तो वहाँ पर हमारी औलाद शजाअत का, बहादुरी का मुकाबला करें।
اب میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ مولانا محمد ہلال اعظمی صاحب نے اور مولانا محمد حمران صاحب نے کس اچھی طریقے سے اپنی بات کو رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچے۔ میں اس عزم کو سلام کرتا ہوں، اس جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ مسکان نے جس بہادری کا مشاہدہ کیا، جس بہادری کا جذبہ دکھایا، وہ قابل تعریف ہے۔ ہم تمام بیٹیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جب بات اپنی شناخت کی ہے تو مجھے اس شناخت کو باقی رکھنا ہے۔ بہرحال اس طرح کی اور بھی بہت ساری معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ہماری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔